back to your channel Rituraj and Wires and I welcome you all to the channel again. And जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक इंडस्ट्री लेवल एंड रिज्यूम रेडी प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, उसका गाइड आपको प्रोवाइड करूंगा जिसको फॉलो करके आप भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं. सो या आई एम बैक ऑन इट एंड आई वेलकम यू ऑल. सो देखिए, सबसे पहले मैं आज जो बात करना चाहता हूँ प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो जो बेसिक प्रोजेक्ट्स जो बिगनर बनाते हैं आईओटी में कॉलेजेस में, वो किस तरीके का होता है. सो दे मेक प्रोजेक्ट्स ऑन एलईडी बल्ब्स, स्मार्ट एलईडी बल्ब्स, रिमोट कंट्रोल कार्स एंड स्मार्ट पार्किंग सिस्टम. अगर आप 2026 में इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं, सो यू आर मेकिंग अ स्कूल एग्जीबिशन मॉडल, नॉट अ आईओटी प्रोजेक्ट that is being respected as in industry level standards and in job interviews. Okay, you need something that can scale. Like when an interviewer asks this beginner friendly projects about if you have ever made a beginner friendly project, अगर interviewer आपसे पूछता है कि how can you scale this project, that's all. उसके बाद आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे कि हाउ कैन यू स्केल दिस प्रोजेक्ट. आप एक स्मार्ट पार्किंग सिस्टम को कैसे स्केल करेंगे? आप स्मार्ट पार्किंग सिस्टम बनाएंगे, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट देयर. ओके, एंड थिंग्स यू हैव यूज्ड फॉर मेकिंग दोस थिंग्स आर नॉट स्केलेबल. ओके, एंड या यू कैन नॉट स्केल ऑन देम. ओके, हम लोग जो आज प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं ये स्केलेबल होगा. ओके, इसमें हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे और ये रियल मायने में स्मार्ट होगा. ओके, हम लोग इसमें इंटेलिजेंस ऐड करेंगे. Yeah, so let's talk about smart IoT projects. So you don't get hired because you connected a DHT sensor with your microcontroller. Yeah, so you don't get hired for that thing. Okay, you need to explain your system architecture. You have to show the simulation. You have to make the interviewer believe that you really know the simulation of the working of that whole IoT projects. Not just a smart DHT sensor getting attached to a microcontroller and that's the working. That's the simulation you are talking about. No, you need to show that you know the real simulation. अगर आप इस प्रोजेक्ट को मेरे साथ फॉलो करते हैं तो आई कैन गारंटी यू दैट यू विल नो द एग्जैक्ट सिमुलेशन हाउ एन आईओटी रियल आईओटी स्टैंडर्ड लेवल प्रोजेक्ट वर्क्स. ओके, सो या बेसिकली आप जो ये बिगिनर लेवल का आईओटी प्रोजेक्ट्स होता है, दे कैन बी वेरी यूजफुल फॉर लर्निंग. ओके, ऑन बेसिक लेवल. बट अगर आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे कुछ काम करना है, आपको रिज्यूम में कुछ ऐड करना है, आपको कुछ रियल प्रोजेक्ट पे काम करना है जो कि आपको एक्चुअली रिस्पेक्ट दे इन एन जॉब इंटरव्यू या आपको एक डिफरेंशिएशन पोस्ट पे रखे, सो for that reason you need to make something that is clear, can work scalably, like you can scale on that. Okay, that is respected in an industry. Okay, so today we are going to build something that recruiters actually respect during your resume evaluation and your project evaluation. So a real IoT system with I can say a real architecture, a proper backend logic, logging and alert intelligence. So not just connecting wires, blinking LEDs, we are building system thing. We're going to build a modular environmental monitoring system that actually reflects real world IoT architecture. So hardware, backend, logging, alerts and all separated properly, and exactly how industry systems are designed. This is the way industry systems are designed. They have proper backend logging systems, alerts and different types of things. Okay, so different types of means that we can add further on to make the project more scalable. Actually, we can make our project more scalable by adding new features in it. So this is the main reason, or we can say the main agenda behind this project that I have chosen. Okay, this is a difference between a mini project and also we can say in a real world IoT architecture. Okay, so now I will show you the phases on how we're gonna build this project. Different types of phases. I think the first phase will be simulation. The second would be hardware and components designing and sensor monitoring. And yeah, that would be the phases. Let me take you to the slides and there I will show you the phases. Okay. So yeah, in phase 1 we're gonna use Python to simulate sensor data, or we can say generate sensor data that would be temperature and humidity, and also store it in CSV files. Guys, जो हमारा phase 2 होगा ये होगा हार्डवेयर इंटीग्रेशन और रियल डाटा लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं. तो इसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे ESP32 को विद आवर DHT11 सेंसर. उसके बाद इसमें हम लोग रियल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो होता है उसको हमारा बैकएंड यहाँ पे रीड करेगा. तो ये सेंड करेगा लाइव डाटा टू द सिस्टम, रिप्लेस करेगा सिमुलेटेड वैल्यूज विद फिजिकल एनवायरनमेंट डाटा. सो बेसिकली जो फेज 2 होगा इसमें हमारा किस तरीके से प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर होगा. सो इन्वायरमेंटल डाटा होगा जिसको सेंसर सेंस करेगा, वो ESP32 को भेजेगा और ESP32 बैकएंड को भेजेगा. ठीक है, फिर बैकएंड उस पर अलर्ट करेगा और उसको लॉक करेगा. ठीक है, सो दिस विल बिल्ड हार्डवेयर अंडरस्टैंडिंग, पिन कनेक्शंस एंड ऑल्सो सेंसर कम्युनिकेशन को आपको समझने में थोड़ा हेल्प करेगा. ओके,
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फेज 3। फेज 3 हम लोग का है हार्डवेयर एंड सिमुलेशन एंड ऑल्सो गिट और गिटहब में हम लोग अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करेंगे। ओके, सो फेज 3 हमारा इंटेलिजेंस, लॉगिंग और अलर्ट्स के ऊपर होगा। सो बेसिकली इसमें हम लोग लॉग करेंगे ऑल डाटा विद अ टाइम स्टैम्प। इसमें हम लोग ऐड करेंगे थ्रेशोल्ड जो कि लॉजिक के ऊपर बेस्ड होगा, एंड इसमें हम लोग अलर्ट्स लगाएंगे, ट्रिगरिंग अलर्ट्स, एंड अपने कोड को इस तरीके से फॉर्म करेंगे जिसमें कि हम लोग फ्यूचर्स में भी इसमें फीचर्स ऐड करें जिससे कि ये स्केल हो सके। ठीक है, सो डेटा कलेक्शन इज बेसिक बट डेटा इंटरप्रिटेशन इज इंजीनियरिंग। जो मेन एजेंडा रहेगा कि हमारा डेटा कलेक्शन बेसिक होता है। लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि इस तरीके का जो प्रोजेक्ट होता है, स्मार्ट इन्वायरमेंटल मॉड्यूलर प्रोजेक्ट जो होता है, ये बहुत जन बनाते हैं, बट उन लोग करते क्या है, डेटा को बस सेंस करते हैं और उसको क्लाउड में जाकर स्टोर कर देते हैं। दे डू नथिंग विद द डेटा। बट यहीं पे हमारा इंटेलिजेंस वाला पार्ट आता है जो कि हम लोग फेज 3 में करेंगे, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर सिस्टम को सेल्फ मॉनिटर्ड बनाएंगे। मतलब कि जो भी डेटा यहाँ पे स्टोर होगा उस पर एक्शंस भी होंगे। ठीक है, उस पर अलर्ट्स भी आएंगे, उसके डाटा को हम लोग स्टोर भी करेंगे, पर उस पे अलर्ट्स भी आएंगे और ट्रिगर अलर्ट्स भी आएंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट मेक्स आवर सिस्टम वी कैन से स्मार्ट और इंटेलिजेंट। ओके, सो फेज 1 तो हम लोग का यहां पर बिल्ड करता है ब्रेन, फेज 2 हम लोग का कनेक्ट करता है बॉडी को, और फेज 3 हम लोग का इंटेलिजेंस ऐड करता है। सो ये जो हम लोग का फेज 3 है, ये डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी टू द सिस्टम ऐड करता है, और इंस्टेंट ऑफ जस्ट डिस्प्लेइंग वैल्यूज द सिस्टम नाउ रिएक्ट्स इंटेलिजेंटली। So yeah, that is all how we gonna work our project off, and yeah, I'm gonna show you now the whole architecture। मैं आपको एक बार में सारा आर्किटेक्चर दिखा देता हूँ कि आपको एक क्लियर व्यू मिल जाए कि हम लोग करने क्या वाले हैं। ऐसे अभी तो आपको मिल ही गया होगा फेज 1, फेज 2 और फेज 3 मैंने जैसे समझाया था, बट स्टिल मैं आपको आर्किटेक्चर दिखाता हूँ कि आर्किटेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट का बात करता हूँ कि ये फ्लो चार्ट, मतलब कि अगर मैं फ्लो चार्ट में आपको दिखाता हूँ कि ये पूरे तरीके से किस तरीके से ये काम करेगा एक्चुअली में, तो देखिए ये हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यहाँ पे कौन सेंस करेगा, DHT11 सेंसर सेंस करेगा। ठीक है, इसको हम लोग सेंसिंग लेयर बोलेंगे। ठीक है, ये सेंस करके भेजेगा ESP32 को, जो कि डेटा एक्विजिशन लेयर होता है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ बेसिक है। उसके बाद यहाँ पे पाइथन जो रहेगा, जो कि हमारा बैकएंड रहेगा, ये उस डाटा को प्रोसेस करेगा JSON के साथ। ठीक है, आफ्टर प्रोसेसिंग ये इसको CSV लॉग, हमारा डेटा यहाँ पे जाके स्टोर होगा हमारे CSV फाइल में, और यहाँ पे अलर्ट लॉजिक जनरेट होगा अगर वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा हुआ तो। ओके, और ये जो हमारा रहेगा, ये ब्राउजर में आउटपुट भी दिखाएगा और अलर्ट्स भी देगा। तो हमारा डाटा बस स्टोर नहीं होगा, वो डिस्प्ले भी होगा। तो डिस्प्ले हम लोग कहाँ पे करेंगे, ब्राउजर एड्रेस पे करेंगे। ठीक है, फर्दर ऑन अगर मैं इसके इंटेलिजेंस सिस्टम की बात करता हूँ, तो देखिए इंटेलिजेंस सिस्टम अगर बोलूँ तो कैसे काम करता है। सेंसर डाटा, ये बैकएंड प्रोसेसिंग रहेगा। इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड, लाइक 35 डिग्री सेल्सियस इज आवर थ्रेशोल्ड, और उससे ज्यादा वैल्यू आ जाता है तो वो एक अलर्ट जनरेट करेगा, ट्रिगरिंग अलर्ट। सो इफ वी से नो, then continue monitoring. If we say yes, then trigger alert, and that gets stored in the CSV also. So basically अब आपको समझ आ चुका होगा कि हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर क्या है। तो अब मैं फेज 1 से स्टार्ट करूंगा। सो द फेज 1 वुड बी द बैक एंड, द डिजाइनिंग द ब्रेन ऑफ द सिस्टम। सो दैट वुड बी वर्किंग ऑन द पाइथन पार्ट। हम लोग पाइथन में अपने कोड को लिखना स्टार्ट करेंगे। सो या लेट्स बिगिन दैट। सो गाइज वेलकम बैक टू दी वीडियो। आज हम लोग का है फेज 1 सिमुलेशन एंड द मेकिंग ऑफ द ब्रेन ऑफ आवर सिस्टम। सो या बेसिकली मैं यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स पहले पे मैं लिख के यहाँ पर करके आया हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपको सिंपली VS कोड में आना है, यहाँ फाइल्स पे जाना है, ओपन फोल्डर करना है और एक न्यू फोल्डर आपको बना लेना है, जैसे मैंने बनाया है स्मार्ट इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम के नाम से। ठीक है, यहाँ पे न्यू फोल्डर है, आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर एक ये बना सकते हैं। ठीक है, जिसके नाम से हमारा प्रोजेक्ट है। तो मैं बनाया हूँ स्मार्ट इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। ओके, उसके बाद आके आपको उसके अंदर 5 फोल्डर्स बनाना है, डॉक्यूमेंटेशन, आर्किटेक्चर, बैकएंड एंड टेस्टिंग लॉग्स, डिवाइस सिमुलेशन एंड टेस्टिंग लॉग्स। ठीक है, अब देखिए डॉक्यूमेंटेशन, आर्किटेक्चर और टेस्टिंग लॉग्स, ये अभी के लिए आपको इग्नोर करना है। हमें मेन काम जो करना है वो बैकएंड में करना है और डिवाइस सिमुलेशन में करना है। ओके, और डेटा हम बाद में देखेंगे। देखिए सबसे पहले अभी हम लोग बैकएंड से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बैकएंड के अंदर हम लोग अपना मेन प्रोग्राम लिखेंगे, जिससे कि हम लोग के यहाँ पर API क्रिएट होगा और वेब ब्राउजर क्रिएट होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिवाइस सिमुलेशन में एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिससे कि फेक सेंसर डाटा क्रिएट हो, जो कि बाद में वो फेक सेंसर डाटा को जो रहेगा उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे रियल सेंसर डाटा यूजिंग DHT11 टेम्परेचर एंड मॉइस्चर सेंसर एंड ESP32 बोर्ड। ओके, तो अभी के लिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर मैं आपको रन करके दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर सिमुलेशन कैसे काम करेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक डिवाइस सिमुलेशन का प्रोग्राम लिखूंगा। ठीक है, और दोनों एक साथ ऑल्टरनेटली रन करेगा, main.py जो कि हमारा मेन बैकएंड सर्वर है और हम लोग का डिवाइस सिमुलेशन।
ओके, तो सबसे पहले मेन डॉट पी वाई में चलते हैं और वहां पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पर तो मैं पहले अपना कोड यहाँ से हटा लेता हूँ जो कि मैंने पहले से लिखा हुआ था। सो लेट मी रिमूव इट। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्टिंग से आपको कोड लिख के दिखाता हूँ और हर एक चीज को समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने डीएसटी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो फ्लास्क है हमारा, ये हम लोग यहाँ पर बनाता है वेब सर्वर, ठीक है, जिसपे कि हम लोग का डाटा शो होने वाला है। ठीक है, जेएसएनएफआई जो यहाँ पर है, ये हम लोग यहाँ पर करता है की पेयर वैल्यू, मतलब कन्वर्ट करता है पाइथन डिक्शनरी इनटू जेएसएन। जो हम लोग यहाँ पर पाइथन का वैल्यू आने वाला है उसको, मतलब जो सेंसर का वैल्यू आने वाला है उसको की पेयर वैल्यूज में लेके आएगा। ठीक है, हम लोग को जो सीएसवी है यहाँ पे, ये रीड करेगा सेंसर डाटा को और स्टोर करेगा, और जो हम लोग का ओएस है ये हैंडल करता है हमारे फाइल पाथ को। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो हम लोग का है ऐप इक्वल्स टू फ्लास्क नेम, ये हम लोग का इनिशियलाइज करता है बैकएंड सर्वर को। इसके बिना हम लोग का सर्वर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये स्टार्ट करता है बैकएंड सर्वर को हमारा। देखिए, हम लोग यहाँ पर अभी सेम डायरेक्टरी लॉजिक यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इससे होता क्या है कि हम लोग यहाँ पर जो बैकएंड है वो एक्चुअली किसके इनसाइड है, देखिए 03 बैकएंड नाम का फोल्डर के इनसाइड है। ये हम लोग का मेन बैकएंड है। ठीक है, मेन डॉट पी वाई। तो अब हम लोग का जो प्रोग्राम है इसको रन करने के लिए हम लोग को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम लोग का जो फोल्डर है वो 2 फोल्डर्स अब जाए हमारे प्रोजेक्ट रूट में। जिससे कि क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर जो बोथ फाइल का एक्सेस है वो सेम सीएसवी फाइल को मिले, एक उससे डाटा ले पाए, एक डाटा उसमें प्रिंट कर पाए। सो दैट इज द करेक्ट आर्किटेक्चर दैट वी नीड टू फॉलो। ओके, सो दैट्स वाई आई हैव यूज्ड बेस डायरेक्टरी, ओके, एंड डेटा फाइल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एपीआई रूट को लिखने की तरफ। देखिए, ये हम लोग का एपीआई का एंड पॉइंट बना देगा। ठीक है, जब हम लोग वेब ब्राउजर ओपन करेंगे, लाइक जैसे कि मेरा वेब ब्राउजर का नाम होगा http://127.0.0.1 5000 एपीआई सेंसर। तो ये देखिए एपीआई सेंसर जो है ये हम लोग का ऐप राउट रहेगा। ठीक है, अब ये हम लोग का तब फंक्शन रन करेगा अगर इस ऐप राउट को हम लोग यूज करते हैं तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर फाइल एग्जिस्ट चेक करने के लिए कोड लिखते हैं।
देखिए अभी जो हम लोग यहाँ पर ये ऐप राउट लिखे हैं, इसमें हम लोग यहाँ पर इफ नॉट ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट डेटा फाइल, तो इससे होता है कि अगर सिमुलेटर रन करता है या सिमुलेटर नहीं रन करता है तो फाइल हो सके फाइल एग्जिस्ट नहीं करता होगा। सो इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग ये हम लोग क्या रिटर्न कर देगा कि एरर सेंसर डाटा नॉट अवेलेबल। सो ये क्या होता है, ये प्रॉपर एरर हैंडलिंग होता है। समझ लीजिए कि हम लोग का फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो डेटा कहाँ से वो लेके आएगा, डेटा कहाँ से वो एपीआई से निकालेगा। सो इन दैट केस हम लोग का यहाँ पर डायरेक्टली शो कर देगा हमारे वेबसाइट पे कि एरर सेंसर डाटा नॉट अवेलेबल। तो ये हम लोग का ऐप राउट में हमारा जो मेन जहां पे हमारा डेटा शो होगा वेब ब्राउजर में, वहां पे ये शो कर देगा। ठीक है। देखिए ये जो हम लोग लिखे हैं विद ओपन डेटा फाइल आर एस फाइल एंड रीडर लिस्ट सी एस वी डॉट रीडर फाइल, तो इससे क्या होगा कि हम लोग का ये पूरा फुल फाइल को एक लिस्ट की तरह रीड करेगा। जैसे कि एग्जांपल स्ट्रक्चर हम लोग कैसा रहेगा, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टाइम स्टैम्प और उसके नीचे हम लोग का सारा डेटा आएगा, तो एक रो की तरह ये डेटा को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो लिस्ट की तरह ये डेटा को सी एस वी फाइल को रीड करेगा। अब ये जो इफ लेन रीडर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, ये हम लोग का क्या होता है कि अगर हम लोग का ये 1 से छोटा हुआ या इक्वल हुआ, सो इससे क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग का रो जीरो है, मतलब उसमें हेडर नहीं है, इफ ओनली हेडर, सो दिस प्रिवेंट्स रिटर्निंग एम्प्टी वैल्यूज। तो हम लोग यहाँ पर एम्प्टी वैल्यू को अगर हम लोग का नहीं शो होगा हमारे वेब ब्राउजर पे, ठीक, हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला पॉइंट रीडर -1, इससे क्या होगा कि हम लोग को जो लास्ट एलिमेंट है ये उसको रीड करेगा। ठीक है, सो दिस गिव्स लेटेस्ट सेंसर रीडिंग। तो हम लोग का जो वेब ब्राउजर है इस पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग पूरे सेंसर डाटा को नहीं प्रिंट करेंगे, बस जो लास्ट का डेटा है, जो लेटेस्ट डेटा है उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर लास्ट रो रीडर -1 ले रहे हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट में हम लोग लिखे हैं अभी रिटर्न जेएसएन, इसमें थोड़ा आइडेंटिटेशन प्रॉब्लम हुआ था तो मैंने अभी ठीक कर दिया उसको। तो देखिए बेसिकली क्या है ना कि जो हम लोग का यहाँ पर रिटर्न जेएसएन है, ये आपको पता ही होगा इसके फंक्शन क्या होते हैं। ये कन्वर्ट कर देगा हमारे डेटा को जेएसएन फॉर्मेट में, जिससे कि ब्राउजर इसको डिस्प्ले कर सके सही तरीके से, मतलब की पेयर वैल्यूज में डिस्प्ले करेगा। अब चलिए अब सर्वर को रन करने का मेन प्रोग्राम लिखते हैं।
ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर मेन प्रोग्राम को अपना कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हम लोग का बैकएंड सर्वर था। इसमें हम लोग क्या किए कि जो लास्ट वाला है यहाँ पर इफ नेम इक्वल्स टू मेन, इससे क्या होगा ना कि ये हम लोग का एक ऐसा कंडीशन डाल देगा कि सर्वर तभी रन करेगा जब फाइल एग्जीक्यूट होगा डायरेक्टली। ठीक है। सो ये डिबग हम लोग का देखिए यहाँ पर जो ट्रू है, ऐप डॉट रन डिबग ओनली व्हेन इट इज ट्रू। ठीक है। सो ऑटो रिलोड, और ये हम लोग का एरर लॉग्स को भी शो कर देगा। ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं हमारे डिवाइस सिमुलेशन के कोड को लिखने के लिए। सबसे पहले अपने डीएचटी लाइब्रेरीज को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर अपना वापस से जितने लाइब्रेरीज थे उसको इंपोर्ट कर लिए हैं। तो देखिए सीएसवी के बारे में तो आप जानती हैं, ये हम लोग का सेंसर डाटा को राइट करेगा, ओएस हम लोग का हैंडल करेगा फाइल पाथ को, रैंडम हम लोग का हाँ रैंडम जो है यहाँ पर रैंडम रैंडिट, ये हम लोग को जनरेट करेगा फेक सेंसर वैल्यू, जो कि मेन काम है डिवाइस सिमुलेशन का। टाइम हम लोग को ये कंट्रोल करेगा, जो डिले हम लोग टाइम में डालने वाले, मतलब कि कितने देर में हमारा फेक सेंसर डाटा न्यू फेक सेंसर डाटा डेवलप होगा। डेट टाइम हम लोग का करंट जो हम लोग का टाइम स्टैम्प है, मतलब कि कितने टाइम पे हमारा यहाँ पर जो डेटा है वो जनरेट हुआ, वो भी हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं ना, तो वो हम लोग जनरेट करेगा ये डेट टाइम वाला फंक्शन। ठीक है। सो दिस फाइल सिमुलेट्स अ रियल सेंसर बाय जनरेटिंग एनवायरमेंटल डेटा एंड लॉगिंग इट इनटू अ परसिस्टेंट स्टोरेज। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो रियल सेंसर का डेटा है उसको यहाँ पर थोड़ी तरीके से हम लोग यहाँ पर सिमुलेट कर रहे हैं, या बोल सकते हैं उसको यहाँ पर मिमिक कर रहे हैं अपने सिस्टम से। ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्टरी लॉजिक को लिखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर अभी अपना जो बेस डायरेक्टरी था और जो डेटा फाइल था उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर फाइल से क्या होगा, ये हम लोग करंट फाइल पाथ बता रहा है। एप्स पाथ जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, एप्स पाथ, ये हम लोग को कन्वर्ट कर देता है फुल एब्सोल्यूट पाथ में। और जो डायरेक्टरी नेम है, डायरेक्टरी नेम, ये हम लोग को कन्वर्ट कर देता है गोज वन फोल्डर अप, यूज ट्वाइस गोज टू फोल्डर अप। मतलब कि देखिए ये हम लोग का जैसे पहले भी हम समझाए थे मेन डॉट पी वाई में, क्योंकि हम लोग का ये देखिए ये जो मेन फोल्डर है वो एक फोल्डर के अंदर है और उसके अंदर हमारा मेन फाइल है। तो अगर जो हमारे जब हम रन करते हैं तो ये प्रॉब्लम आता है कि हम लोग का जो ये फाइल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि जो हम लोग का मेन प्रोग्राम है वो इतने प्रोजेक्ट फोल्डर के रूट में जाते ही नहीं है। तो उस रूट में वो जा पाए इसलिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टरी नेम को ज्वाइन हम लोग का क्या करता है, ज्वाइन हम लोग का एक्चुअली सेफली क्रिएट्स करता है फाइनल पाथ को। ठीक है। सो
जो भी हम लोग का मेन स्ट्रक्चर था जो कि अभी हम लोग का बन रहा है वो है मेन डॉट पी वाई, ठीक है। और जो बैकएंड होगा और 04 जो डिवाइस सिमुलेशन है, देखिए 04 डिवाइस सिमुलेशन ये हम लोग का डिवाइस सिमुलेशन मतलब फेक सेंसर डाटा क्रिएट करने वाला है, ठीक है। और ये जो हम लोग का प्रिंट डिवाइस सिमुलेटर स्टार्टेड, ये हम लोग का स्टार्टअप मैसेज होगा कि हम लोग का मतलब कि जो डिवाइस सिमुलेटर है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये कहीं से कहीं ना कहीं क्लीन दिखाता है हमारे थोड़े से मतलब रनिंग प्लेटफॉर्म्स को, इसलिए मैंने इसको ऐड किया प्रिंट में। देखिए अब जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं इफ नॉट ओ एस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट डेटा फाइल, तो इसका मतलब क्या होता है ना कि ये हम लोग का क्रिएट करेगा फाइल इफ अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो, ठीक है। अगर हम लोग का फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये क्रिएट करेगा हेडर उस फाइल के अंदर, और हेडर के अंदर ये क्या स्टोर करेगा, देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि राइटर डैट राइट रो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी टाइम स्टैम्प, तो ये इस हेडर के साथ हमारा फाइल को क्रिएट करेगा। और ये हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड कॉलम की तरह क्रिएट करेगा। तो हम लोग का CSV फाइल किस तरीके से लुक करेगा, लाइक उसमें पहला होगा टेम्परेचर, फिर होगा ह्यूमिडिटी, फिर होगा टाइम स्टैम्प, और उसके नीचे उसका रोज बनते जाएगा जिसके अंदर डेटा स्टोर होंगे। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर तरीके से हमारे CSV फाइल के अंदर डेटा स्टोर होंगे, ठीक है। और अब हम यहां पर एक इन्फिनाइट लूप लगा देंगे वाइल ट्रू का यूज करके, इसी की कंटिन्यूअसली करते हैं। पानी है, कहाँ से खाना काम कर रहे हैं, तुम क्या सोच जाएगा कि नहीं। बनाने इसमें अरे बनने क्या है? कभी तुम बोल रहा था कि चल जाएंगे ये ले लो टिकट ले लो, बोला नहीं जाएंगे भाई। कल पहले तो लोग मीटिंग कर रहा था, तो अबे बोल रहा था हाँ वो तो टिकट करवाने वाले हैं, तभी बात करते हैं इसलिए हम तो उधर चल सकते हैं। देखो नया बंदा जाएगा तो उसको ऊपर नहीं देगा, तो 20,000 काम करेगा, 25,000 देगा, 30,000 देगा। ये अगर बाद में 10,000 कहीं भी कितना देगा, 18,000 देगा, 15,000 देगा, थोड़ा सा एप्रिशिएशन लेगा कहीं भी जाएगा तो घूम लेगा हम लोग। नहीं हम ले लेंगे, हम तो बोला पैसे देंगे, पैसा दे देना तो 3 वाला आ जाएगा। रूम का सोच हुआ क्या असली अरे नहीं दिक्कत है, करियर से कभी ये नहीं करना चाहिए, रूम तो चेंज होती रहेगा लाइफ में, आज यहाँ कल कहीं होगा। इंपॉर्टेंट है कि तुमको सीखो बाहर जाके। हम तो कुछ सोच रहे थे हमने जब दिया था एग्जाम डिग्री का तो लास्ट में मैं इंटर्नशिप कर रहा था, मेरी स्टार्टिंग कर रहा था 5 बजे, स्टार्ट में आधा कार्ड ले वापस नहीं। जैसे हम लोग 2 टाइम करवा रहे हैं इंटर्नशिप, हम लोग एक टाइम फाइनल करना है।
खींचना और पापा बोलेगा हम भी चल जाए हमारे में बोले आप नहीं जाओगे ठीक है तो जाने के लिए नहीं भरोसा है हमको मन तो जाने का खुद सीखते हुए जाकर फैक्ट्री में कैसे काम होता है क्या नहीं होता है बाहर निकलते थोड़ा ये तो जॉब ले जाएगा तो नहीं सुनाएगा एक्सपीरियंस लेंगे फ्रेशर को लेंगे हम भी खटना तो देखिए हम लोग यहाँ पर इन्फिनाइट लूप अपना लिख दिए हैं वाइल ट्रू करके। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोग को सिमुलेट कर देगा कंटिन्यूअस डिवाइस को और रियल आईओटी सेंसर को हमेशा रन करेगा फॉरएवर। ठीक है, जो जनरेट होगा सेंसर वैल्यू ये इस फॉर्म में होगा। देखिए टेम्परेचर राउंड डॉट यूनिफॉर्म 2035 तो ये हम लोग का सेट वैल्यू है जिसके बीच में हम लोग यहाँ पर नंबर्स जनरेट होंगे और उनके बीच का गैप कितना होना चाहिए। तो ये हम लोग का रियलिस्टिक DHT11 का जो वैल्यू होता है उसको बोल सकते हैं कि एकदम डेसिमल वैल्यूज पे देगा। ठीक है, नॉट इंटीजर्स। अब राउंड 2 क्या होता है तो ये मिमिक करेगा रियल प्रिसीजन, मतलब कि हर दो मतलब कि बोल सकते हैं कि 28 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री सेल्सियस इस तरीके से। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स हम लोग यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर दिए हैं। तो टाइम स्टैम्प से क्या होगा कि ये हम लोग का डेट और टाइम बता रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट किस में काम आएगा, लॉगिंग में और हिस्ट्री एनालिसिस में डेटा का, कि कब हम लोग का किस डाटा पे क्या हिस्ट्री रहा। ठीक है, और ये हम लोग का अलर्ट सिस्टम पे भी इसको हम लोग आगे जाके स्केल करेंगे। ठीक है, तो अलर्ट सिस्टम में भी ये हेल्प करेगा। अब अपेंड टू फाइल में हम लोग यहाँ पर क्यों किए हैं अपेंड टू फाइल, ए देखिए यहाँ पे इसमें क्या हुआ है कि हम लोग डेटा फाइल को ओपन किए हैं तो ये हम लोग क्या करेगा ना कि जो प्रीवियस डाटा है उसको ओवरराइट नहीं करेगा। ठीक है, सो अब जो हम लोग का न्यू रो है ये हर 5 सेकंड में ऐड होते रहेगा। किसका हेल्प से, राइट दैट राइट रो से। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और टाइम स्टैम्प, इसमें हम लोग का हर 5 सेकंड में एक न्यू डेटा ऐड होते रहेगा। किसके हेल्प से, टाइम डॉट स्लीप 5 देखिए यहाँ पे हम लोग किए हुए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का डिले भी एक तरीके का डिवाइस सेंस डेटा इन एवरी 5 सेकेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग का ये पूरा काम करेगा। सो देखिए आफ्टर इसको एक बार हम लोग रन कर देंगे तो ये जो स्क्रिप्ट है ये सिमुलेट करता है रियल इन्वायरमेंटल सेंसर नोड को। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली जनरेट करेगा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वैल्यूज को और टाइम स्टैम्प को और इसको लॉक करेगा एक स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज में। ठीक है, जो कि मिमिक करता है बिहेवियर ऑफ एन एक्चुअल ESP32 डिवाइस एंड DHT11 सेंसर। ओके, अब मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूं और आपको इसके वेब ब्राउजर पे भी डेटा दिखा देता हूं कि इसका डेटा क्या आ रहा है। तो हम लोग इसको दो सेपरेट टर्मिनल में रन करेंगे। सबसे पहले इसको मैं डिवाइस सिमुलेशन को रन करता हूं। ओ वेट अ मिनट, ये पहले से खुला हुआ है। देखिए गाइस हमारा डिवाइस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। देखिए डिवाइस सिमुलेटर स्टार्टेड, जो हमने यहाँ पर प्रिंट किया था वैल्यू को कि हमारा डिवाइस सिमुलेटर जब स्टार्ट हो जाए तो ये प्रिंट हो जाए। देखिए प्रिंट हो गया और हम लोग का डेटा यहाँ पर सेंड होना भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब चलिए main.py को भी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अलग से टर्मिनल में। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसकी जो प्रोजेक्ट रूट है उसमें इसको ले जाते हैं क्योंकि प्रॉब्लम आता है बाद में। तो आप डायरेक्टली 03 कमांड 03 आपका जो फोल्डर का नेम होगा आप उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये ऐड हो जाएगा आपके पाथ में और आफ्टर एडिंग इन द पाथ देखिए यहाँ पर पाथ में ऐड हो गया। अब यहाँ पर आप प्रिंट कर दीजिए अपने फाइल का नाम। देखिए ये भी स्टार्ट हो गया है, रीस्टार्टिंग विद स्टैट, बैकएंड सर्वर स्टार्टेड, डिबगर पिन भी हमें मिल गया और ये रनिंग कहाँ पे हो रहा है वो भी हमें वेब ब्राउजर पे दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको वेब ब्राउजर पे ले जाता हूँ जहाँ पे ये रन हो रहा है। देखते हैं गाइस हमारा यहाँ पर जो वैल्यू था, जो हमारा डेटा था जो कि फेक सेंसर का, वो हमारे ब्राउजर एड्रेस पे आके प्रिंट होने लगा है। तो ये हम लोग का लेटेस्ट सेंसर डेटा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हम लोग का वेब एड्रेस है और ये हम लोग का डेटा है। ह्यूमिडिटी 77 पॉइंट्स, टेम्परेचर 31.47 और ये हम लोग का टाइम दिया हुआ है 6:43 का 6:43:51 एंड 2026 2/12 मतलब 12 फरवरी का। एकदम परफेक्ट टाइम स्टैम्प है, परफेक्ट टेम्परेचर एंड परफेक्ट ह्यूमिडिटी जो हम लोग प्रोवाइड किए थे। सो या दैट्स ऑल। फेज 1 हम लोग का आज कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे फेज 2 पे जहाँ पे हम लोग हार्डवेयर कंपोनेंट्स को फेज 1 में जोड़ेंगे। And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.